Now erupting Southern Hemisphere's largest geyser. रास्ते के बीच में से जियोथर्मल गैस निकल रहा है। Kiwis are endangered birds. This is the largest lake in New Zealand by surface area. यहाँ पर रुका तो था लेकिन मेन डेस्टिनेशन है नेपियर। पेनिया को भी कुछ हो गया और दोनों में स्टार्ट हो गया एक स्वीट लव स्टोरी। सुबह ठंड में चेकआउट करके सारा सामान रिसेप्शन में रख दिया। यहाँ से जाना है ते पुया थर्मल पार्क, पोहुटू गीजर, रोटोरुआ का फेमस जियोथर्मल हॉटस्पॉट। वहाँ जाने के लिए आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, बस नंबर 11। 5 या 6 स्टॉप ही है। रिटर्न आने के टाइम में 2 ऑप्शन रहेगा, बस नंबर 11 और 12। ते पुया थैंक यू। बस ते पुया बस स्टॉप पे उतरिए और सामने ही है गेट। वेलकम टू जियोथर्मल वंडरलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। यहाँ पर कीवी कंजर्वेशन सेंटर है। ते पुया के अंदर है पोहुटू गीजर, दैट इज द लार्जेस्ट गीजर ऑफ न्यूजीलैंड, नॉट इवन न्यूजीलैंड, इन एंटायर साउदर्न हेमिस्फीयर। गीजर का हाइट देखेंगे तो समझ में आएगा। It erupts 20 times a day up to a height of 30 मीटर। 1.5 घंटे में आपको एक बार तो देखने को मिल ही जाएगा। लोकेशन है वाकारे वारेवा थर्मल रिजर्व। एडल्ट टिकट प्राइस $95, चाइल्ड 47.5। चाइल्ड कैटेगरी मतलब 5 to 15 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स फ्री। 2.5 से 3 घंटा टाइम लेके ही आइएगा। गाइडेड एक्सपीरियंस है ये पूरा। टिकट आप ऑनलाइन बुक करके ही आइए। यहाँ पर आगे आप अपना प्रेफर्ड टाइम में ट्राई करेंगे तो आपका चॉइस का टाइम स्लॉट नहीं मिलेगा। कनेक्टिंग बस या ट्रांसफर रहेगा तो वो मिस हो जाएगा। ते पुया इज ऑल्सो अ माओरी कल्चरल सेंटर। यहाँ रात को भी आ सकते हो। नाइट के टाइम में अगर आप गीजर इरप्शन देखते हो तो मस्त लगता है, क्योंकि लाइटिंग वगैरह ये लोग यूज करता है। अंदर रेस्टोरेंट है तो खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है। रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। मेरा 9 बजे का सेशन है। 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। कोई भी टाइम स्लॉट ले सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से। रात को ही आता, मैं नेपियर चला जा रहा हूँ। रात में सच में बहुत बढ़िया लगता है। चलते हैं अंदर, टाइम हो गया एंड लेट्स चेक आउट पोहुटू गीजर। मॉर्निंग। What's your name on your Abhishek. This will just let our guides know you booked the 9 a.m. And as long as you've got this wristband on, you can come and go from the park till 5 o'clock. And then just through here's where you'll meet your guide. This way. Yeah. The full name of this area is Te Whakarewarewatanga o Te Opetau Wā a Wāhia, or Waka for short. My name is Manaki and I will be your host, or I'll be your tour guide for this morning team. We're going to start in the bottom half of our valley. We're going to go visit our kiwi birds, our mud pools and our geysers. After we finish down there, we'll make our way back up to the top, hitting that building on the far side that you see. That is our kura, New Zealand Māori Arts and Crafts. Our tour should roughly take about an hour and a half. But my full name is Manaki Tūhoi Hāturi ni Te Māro Te Marabing. But you can call me Manaki for short, of course. As soon as our tour is finished, the rest of the day is yours. You guys can walk around Te Puia as much as you want, visit all the different sites that we have as well. But when you're ready, team, we'll get straight into it, eh? The people who come, Everyone has to take a tour because we used to do self-guided, but too much people try to think they could, but these were only here for display. They'll try and jump the fence and go walk up to the geysers and everything. This is our backyard of Waka, or the valley I said. We have 5 active geysers down the bottom over there. Both is the largest geyser on this side of the world, the 4th largest geyser in the world. Highest recorded height is about 45 meters. We're going to head towards our kiwi house and go see our kiwi birds. When you're ready, team? Pohutu geyser is the largest geyser in southern hemisphere and yep. as well as obviously in New Zealand. And New Zealand, yep, correct, my friend. So Pohutu is the largest natural geyser in the southern hemisphere and the 4th largest geyser in the world. Before we can actually go inside, really quickly, these rules are made by Kāwanapanga Aotearoa, or New Zealand government. For all kiwi enclosures in New Zealand. Kiwis are endangered birds. Their population declines about 2%. Their life expectancy is about 15 years old.
When they move into enclosures like this one, they can live up to about 35. One of the two Kiwi, footage from inside of her burrow, our female and actually hiding herself actually at the moment, well inside of her burrow. She is roughly around the age of 4 years old. Both. We do not allow videos, photos, and photography of any kind to be taken inside. As I'll bring us to the education room, we have a Kiwi on display for you guys. You can take a photo and a video of this Kiwi here. They use these whiskers to help them fare around during. It takes up almost 80% of their inside. A couple of days before they actually hatch and raise their eggs. The name of these mudpools are Ngā Mōkaya Koko. Koko was a chief in this area who named these mudpools after his kids. Look at it, man. Now erupting, southern hemisphere's largest geyser. See the height. कितना देर से वेट कर रहा था एक्चुअल हाइट देखने के लिए। न्यूजीलैंड में आते हो तो रोटोरुआ मिस मत कीजिए। ये जगह को बेस करके आप बहुत सारा चीजें कर सकते हो। पहले सेल्फ गाइडेड टूर होता था, लेकिन अभी इन लोगों का टूर बुक करना है, तभी जाके आप ये गीजर तक पहुंच पाओगे। Before we start moving, we put out their safety. Please remain seated while we are driving. And in case of emergency, there is a green cord directly above. New Zealand's first ever Māori Arts and Crafts School. Not the first, but one of the first. Today we practice 5 different art forms with many different students here today. This is the largest art form that we have here today. The 3 big red ones that you see, each their friends, their family, how to truck hard. Certain seasons throughout the night. Rāranga. This is our weaving art form, also known as Rito. रोटोरुआ में टाइम ओवर। रिटर्न जाने के टाइम में थर्मल पार्क से निकल के आगे जाना होगा फेंटन स्ट्रीट ऑपोजिट बीपी बस स्टेशन तक। बस नंबर 11 या 12 भी जाता है कभी कभी। कैसे जगह से चल रहा हूँ देखिए, रास्ते के बीच में से जियोथर्मल गैस निकल रहा है। अर्थ को एक हॉटस्पॉट है ये। आसपास कहीं होगा बस स्टॉप। आ तो गया ऑलमोस्ट। बी कार्ड या फिर कैश से भी पे कर सकते हो। फेंटन स्ट्रीट फ्रंटिंग 1241। 1241, where is that now? आफ्टर रोटोरुआ सेंट्रल मॉल। Oh yeah, you going for change please? Oh yeah, I got it. Yeah. Thank you. Welcome. Thank you. बस से उतर गया, सामान ले लेंगे होटल से और इसी तरह वापस आएंगे। इंटरसिटी बस पकड़ के नेपियर जाएंगे। मेरा होटल सिलेक्शन और होटल का एक्चुअल जो लोकेशन का सिलेक्शन वो इस ट्रिप पे बहुत ही बढ़िया था। अभी तक सारे जगह का जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस स्टॉप है वहाँ से मेरा होटल का लोकेशन 5-6 मिनट का दूरी में ही है। रिमोट से रिमोट जगह में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में केयर्न्स, वहाँ भी वैसा ही था। यहाँ भी देखिए, जस्ट ये टर्न लूंगा, सामने ही मेरा होटल। जल्दी से सामान लेते हैं। गुड मॉर्निंग।
I'm fine. I need my luggage back. I stored it over here. Okay. It was nice staying here. Thank you. सामान ले लिया, चलते हैं बस स्टॉप तक। रोटोरुआ आई साइड। आई थिंक नेपियर वाला मेरा ही बस खड़ा होगा, उस पर जाने से पता चलेगा। आप ऑकलैंड से आओ या नेपियर जाओ, कहीं भी आप जा रहे हो, इंटरसिटी बस आके यहाँ पर रुकता है। दिस इज नॉट द इंटरसिटी बस, राइट? We're looking at Intercity. Yeah, 1 o'clock it will be leaving from here. You can wait here. Okay, thank you. Bus will be here shortly. So here comes my bus. लिखा तो है ट्रांजिट, लेकिन इसके जैकेट में लिखा है इंटरसिटी सामने। आई होप यही वाला जाएगा। ड्राइवर उतरने से पूछते हैं, इज इट द बस टू नेपियर? Yes. ओके। I'll be with you in a moment. I'll just deal with these ones. अभिषेक। Sorry. Yeah, that's fine. Going to Napier. Yeah. Okay. Yep. You like to put it here? Great. Yep. On the right, we'll be on the same side when I pack up. That is the Wellington bus, the double decker, and just opposite there, and we'll park behind it. पहले न्यूजीलैंड का ट्रिप में टापो मेरा प्लान में था, लेकिन रोटोरुआ में उतना सारा अट्रैक्शंस देखने के बाद टापो का प्लान चेंज करके रोटोरुआ में शिफ्ट कर लिया। अब जो रोटोरुआ से नेपियर की तरफ जा रहा हूँ, बस इधर 30 मिनट्स के लिए हॉल्ट किया। सीधा घूम के आऊंगा लेक टाउपो। क्वींसटाउन और टेकापो तक जब पहुंचूंगा, पूरा स्नो कवर्ड पहाड़ आपको दिखेगा। अगर सीनिक ब्यूटी के टर्म्स में आते हो तो न्यूजीलैंड इज फार अहेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अलग टोपोग्राफी है, वहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज, दूसरा सारा चीजें बहुत अच्छा है। मेरा ड्रोन पास होता तो क्या कमाल का व्यू आता। एक बड़े से वोल्केनो के ऊपर ये लेक, जियोग्राफिकली कैल्डेरा के ऊपर इसका लोकेशन आप बोल सकते हो। 616 स्क्वायर किलोमीटर जितना मुझे याद है, दिस इज द लार्जेस्ट लेक इन न्यूजीलैंड बाय सरफेस एरिया। सिर्फ पहाड़ का रेंजेस कुछ दिख रहा है, फेंट लाइन। करीब 25,600 साल पहले एक मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। यहाँ पर ट्राई कर सकते हो स्काई डाइविंग। बाकी तो मैं सिर्फ 10-15 मिनट इधर वेट कर रहा हूँ, सीनिक ब्यूटी एंजॉय कर रहा हूँ और बस पे चढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखा था, यहाँ पर चोरी होता है, यहाँ का लोकल लोग भी बोलता है। और चोरी ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई हमला करके करेगा। इफ यू लीव योर थिंग्स अनअटेंडेड तभी चोरी होगा। सामान अपने पास केयरफुली रखिए तो सेफ है। आप आसपास भी वही लिखा है। यहाँ पर रुका तो था, लेकिन मेन डेस्टिनेशन है नेपियर, अ कोस्टल सिटी इन नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड लोकेटेड एट हॉक्स बे। विकार्ड से आप लोकल ट्रांसपोर्ट करते हो, तो अगर जरूरत पड़ेगा मैं कैश से पे कर दूंगा। वेट करेंगे और 5 मिनट में मेरा बस छोड़ देगा। नेपियर इज ऑल्सो वन ऑफ द रिनाउंड वाइन प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ हॉक्स बे। 1931 के अर्थक्वेक के बाद नेपियर को फिर से बनाया गया, मतलब वो सिटी पूरा डैमेज हो गया था। नियरली 68,000 पॉपुलेशन है लास्ट डेटा के हिसाब से। नेपियर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द आर्ट डेको कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर इट्स आर्किटेक्चर। मुझे नेपियर में जाके बी कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वींसटाउन में लूंगा। नेपियर में उतना जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे होटल के आसपास ही है और मुझे सिर्फ सी बीच के पास जाना है। नेक्स्ट डे मुझे नेपियर से निकलना है वेलिंगटन की तरफ। यहाँ से मुझे पैदल चलना है करीब 10 मिनट। होटल का नाम है टोड हॉल एकोमोडेशन। नेपियर में तो उतना कुछ प्लान है नहीं, सिर्फ वेलिंगटन जाना है कल। यहाँ का टेम्परेचर रोटोरुआ से मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मतलब रोटोरुआ में ठंड ज्यादा था, शायद 2-3 डिग्री ज्यादा होगा क्योंकि मैं समुद्र के पास आ गया हूँ। पास में ही हॉक्स बे है। टाइम हो रहा है 5:30, तो सिचुएशन कुछ ऐसा ही है, सनसेट हो चुका है। सिटी वैसे एक्सप्लोर करने का कोई इरादा नहीं है, मुझे जाना है बीच पेनिया ऑफ द रीफ। छोटा सा स्टोरी है, अगर वहां तक जाता हूँ तो मैं आप लोगों को आगे बता
बताऊंगा। यही कहीं होना चाहिए टोड हॉल एकोमोडेशन। जस्ट एक रात के लिए रहने वाला हूँ। That way? Hello. Hello. How are you? I'm fine. And you? I'm good. You have a booking with us? Yes. Okay, come on in. Abhishek.booking.com. You have been given an upgrade from a standard double to a private bathroom. That's nice. Okay, just so you know, we're a bed and breakfast, so you can help yourself to anything here. There's tea and coffee and Milo there, milk in the fridge. Okay. Lovely guests, yeah. Hi. Okay, and the fresh baking comes out in the morning. Okay. Are those complimentary or I have to pay? No, you can help yourself. Tomorrow when you leave, you can drop the keys into here. You have a key to your room and a key to the building, and it's this door here that I let you in that you have. एंड वेलकम टू मैंडक हॉल एकोमोडेशन, यानी कि टोड हॉल एकोमोडेशन। लेकिन यहाँ बिल्डिंग में आके देखा कि नाम है टोड हॉल बैकपैकर। थोड़ा कंफ्यूज था। एक्चुअली ये बैकपैकिंग काइंड ऑफ होटल है। मेरा डबल रूम 90 न्यूजीलैंड डॉलर, सिर्फ एक दिन का ही बुकिंग फ्री अपग्रेड मिला। मेरा बुकिंग में प्राइवेट बाथरूम नहीं था, शेयर्ड बाथरूम था, लेकिन फ्री अपग्रेड की वजह से प्राइवेट बाथरूम भी मिल गया। सही से दिखा देता हूँ। यहाँ एक बेसिन है। आई डोंट नो इसके अंदर और कुछ दिया है कि नहीं। नथिंग। टॉवेल मेरा रूम की, और ये मेन गेट का की। मतलब यू आर फ्री, रात में आप कभी भी आ जा सकते हो। इस द रूम हीटर अभी तक टायर नहीं हुआ। एक बड़ा सा मिरर अपना बदसूरत सा चेहरा देखने के लिए। बाहर एक किचन एरिया भी है, आप अपना खाना पका सकते हो। वाईफाई फ्री, ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। बाहर जाके किचन एरिया देख लेते हैं। ही इज ऑलरेडी कुकिंग समथिंग। फ्राइड एग। खाना बनाओ, लेकिन सब कुछ धो के अपनी जगह पे रख दो। रेफ्रिजरेटर अपना खाना लेवल करके ही रखना, नहीं तो कोई भी यूज कर सकता है। अपना खाना लाओ और पकाओ। See, नाम दे के रखा है। Any food not named or stored correctly will be removed from the fridge. यहाँ पर कुछ खाने का मेन्यू है, ब्रेकफास्ट लाइक सब कुछ है। कॉर्नफ्लेक्स से लेके चाय एंड टोड हॉल ब्रेकफास्ट फ्रिज। मेंढक हॉल से निकल चुका, मतलब वही टोड हॉल से जा रहा हूँ नेपियर बीच की तरफ। आसपास कुछ स्पॉट्स से देखूंगा। सबसे पहले तो पेनिया ऑफ रीफ, उसके बारे में थोड़ा जानना है। जानना क्या है, मतलब मैं जान के ही आया हूँ। आप लोगों को बताना है एक छोटा सा स्टोरी। एक दिन अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा बिता सकते हो। कहाँ जा सकते हो इसका डिटेल्स आपकी स्क्रीन में है ऑलरेडी। बीच के आसपास कुछ देर टाइम बिताएंगे और इधर आके डिनर करके होटल चले जाएंगे। नेक्स्ट डे लंबा जर्नी है वेलिंगटन की तरफ। An old Maori legend tells how Penia, lured by the siren voices of sea, people swam out to meet them. When she endeavored to return her lovers, he was transformed into the reef which now lies beyond the Napier breakwater. तो फिर स्टोरी क्या है? पेनिया एक सुंदर मरमेड जो समुद्र में रहता था। हर रोज सनसेट के बाद समुद्र से निकल के नेपियर में एक छोटा सा नदी या फिर अपस्ट्रीम कह सकते हो, जो यही हॉक्स बे पे आके मिलता है। पेनिया वहाँ पर एक अच्छा टाइम बिताता था। माउरी चीफ का एक हैंडसम लड़का जिसका नाम था कैरीटोकी, वो पेनिया से मिला वही स्ट्रीम के पास। He had never seen someone so beautiful, so instantly he fell in love with her. पेनिया को भी कुछ हो गया और दोनों में स्टार्ट हो गया एक स्वीट लव स्टोरी। पेनिया एक मरमेड था, तो दोनों ने अपना रिलेशन सीक्रेट रखा था और शादी भी कर लिया। हर दिन सुबह सनराइज के बाद पेनिया को समुद्र में लौटना पड़ता था। कैरीटोकी उसके बिना रह नहीं पाता था, तो इसलिए उसको रोकना चाहा। पेनिया ने कैरीटोकी को समझाया, सी इज अ क्रिएचर ऑफ सी एंड व्हेन द सी बेल रिंग्स सी हैज टू गो बैक टू द सी, अदरवाइज सी कांट सर्वाइव। लेकिन जाने से पहले उसने प्रॉमिस करके गया कि हर दिन वो सनसेट के टाइम में वापस आएगा और कैरीटोकी के साथ रहेगा। ऐसे ही उन लोगों का शादी के बाद लाइफ चलता रहा। इन द मीन टाइम कैरीटोकी अपने दोस्तों के पास उसको एक सुंदर बीवी मिला है, ये राज बताया। पर किसी ने कैरीटोकी के साथ पेनिया को नहीं देखा था, इसलिए उसको कोई विश्वास नहीं किया। उससे में एक दिन कैरीटोकी यहाँ एक काऊ माता को कंसल्ट किया। काऊ माता मतलब वाइस एल्डर या बुद्धिजीवी आप कह सकते हो। कैरीटोकी को सलाह दिया कि बीइंग अ सी क्रिएचर पेनिया कैन नॉट रिटर्न टू द सी इफ सी सैलोज कुक्ड फूड। एक दिन रात पेनिया जैसे ही सो गया, जबरदस्ती पेनिया के मुंह में पकाया हुआ खाना डाल दिया और ऐसा करते ही रूरू द सो कॉल्ड आउल गेव अ लाउड वार्निंग। पेनिया का नींद खुल गया। डर के मारे पेनिया समुद्र की तरफ भाग गया। पेनिया के लोग समुद्र से आया और पेनिया को लेके चला गया। शी वाज अ सी क्रिएचर आफ्टर ऑल एंड कैरीटोकी नेवर सॉ हर अगेन। यहाँ पर जितना लोग रहता है, इनमें से किसी का कहना है कि कभी कभी समुद्र में ये पेनिया को देखता है। शी वाज मिसिंग हर लवर। द सी ऑफ नेपियर इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय मोर द सन ऑफ पेनिया एंड कैरीटोकी। लोगों का यहाँ मानना है ही इज द गार्जियन ऑफ द एरिया। ऑफन ही डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज एन ऑक्टोपस, शार्क और अ स्टिंगरे। ये जगह का देखभाल वही करता है।
तो मेरे पीछे ये 1.5 मीटर का स्टैचू बिल्ड बाई प्राइम मिनिस्टर सिडनी हॉलैंड इन 1954। इसको आप मिथ कह सकते हो, लेकिन इतना लोगों का मानना है, कुछ लोगों ने देखा भी है और अभी भी देखता है, तो कुछ ना कुछ तो स्टोरी है। और ऐसे अंधेरे जगह में मैं खड़े होकर ये स्टोरी बता रहा हूँ। फीलिंग बिट वियर्ड। पेनिया जी को अपने कैरिटोके के साथ छोड़ देते हैं। आई प्रे देयर लव लाइफ गोज वेल एंड वेयरएवर देयर सोल्स आर दे स्टे हैप्पी। यही स्टोरी है। सुबह के टाइम में आओगे तो और अच्छा लगेगा, बहुत सारा लोग देखने को मिलेगा। अंधेरे में कुछ लोग पार्क में वॉक कर रहा है, लेकिन उतना भीड़ नहीं है। बीच में थोड़ा उतरूंगा फॉर अ नाइस इवनिंग वॉक। और तो कुछ है नहीं रात को इधर करने के लिए। ध्यान में रखिए, नेपियर बीच इज नॉट सुइटेबल फॉर स्विमिंग। यहाँ का समुद्र बहुत ही रफ है। देयर इज अ शार्प ड्रॉप इन द shoreline and the reef currents will drag you off the shore. Better avoid swimming in Napier Beach. Actually जिस टाइम के लिए वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं नेपियर प्रिजन घूमने के बाद शाम का बस मिल जाएगा, मैं रात तक वेलिंगटन पहुंच जाऊंगा। तो आगे पीछे सब टिकट हो गया। बाद में जाके पता चला जिस डे में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ उसमें सिर्फ सुबह का बस ही छोड़ता है, इसलिए मेरा नेपियर प्रिजन मिस हो गया। नेपियर में एक दिन अगर आप बिताते हो, जो स्पॉट आपको नहीं मिस करना चाहिए वो है केप किडनैपर्स। यहाँ से बहुत दूर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ले जाएगा, आपको कैब हायर करके ही जाना होगा। वहाँ पर जो ट्रेक और जो व्यू मिलेगा, जस्ट किलिंग। सो यू मस्ट गो टू केप किडनैपर्स अगर आप यहाँ पर रहते हो। नेपियर प्रिजन दिखाने का मन था बट कैलकुलेशन गलत हो गया, वेलिंगटन ही जाएंगे। केप किडनैपर्स अगर आप जाते हो, यू मस्ट ट्रेक टू द गैनेट कॉलोनी। गूगल मैप में जाके चेक कीजिए। क्वाइट श्योर कुछ दिखाई तो नहीं देगा रात को। सचमुच यहाँ पर एक शार्प ड्रॉप है शोर लाइन में। मन करता है तो सुबह आके एक बार बीच दिखाऊंगा आप लोगों को। आज का खाना काफी डिलीशियस था। पास में ही बीच, खाना खाया और होटल। कुछ देर इधर टाइम बिता के सो जाते हैं, नेक्स्ट डे निकलते हैं वेलिंगटन के लिए।